Hello students. In this video we will discuss about the application of ogives. Earlier we discussed about the less than type of ogive or more than type of ogive. So what is the use of these two graphs? So the use is to find out the median. This is the application of ogive. We can easily find out the ogive. For that we will have a procedure. As I have already mentioned, the algorithms. So there are two algorithms. You can find out median by using any of those two algorithms. So we will discuss about it in detail. And before that, there is a relation between mean, median, and a mode. And the relation is mode equals to 3 median minus 2 mean. You have to remember this relation. Sometimes in exams, the examiner may be asked a objective question based on this formula. So you must remember it, that mode equals to 3 median minus 2 mean. This is the relation between mode, median and mean of the group of data or the discrete data, any of the data. ठीक है, तो उस तरीके से आपसे वो पूछ सकता है. So ये आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है. ये आपका ये मान के चलिए कि एक कंक्लूडिंग पोर्शन है आपका, जिसमें आपका एक ये रिलेशन बचा हुआ था और ये के बचा हुआ था. ठीक है, दिस विल बी द एंड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर. आफ्टर दैट इन 1 or 2 वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर क्वेश्चंस अबाउट स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, जिसमें विल कवर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसमें आपका 1 या 2 वीडियो रहेगा मैक्सिमम. सो रिगार्डिंग थ्योरी, दिस वीडियो विल बी द एंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर. सो ये आपको एक ध्यान रखना है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब इसमें आपको कैसे भी मॉडिफाई करवा सकता है कि मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन बाई 3. ये आप लोग सफल कर लेना इधर उधर, तब आपको वो मिल जाएगा. नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ ओगिव. इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड आउट द मीडियन. ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे मैंने आपका एल्गोरिथम में लिखा है, तो इसमें मैंने पहला स्टेप क्या लिखा आपका कि सबसे पहले आपको जो अभी तक लर्न कर चुके हो आप, लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ ओगिव, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ईदर लेस देन और मोर देन. In this section I mentioned that either you have to draw the less than ogive or the more than ogive. The next step will be you have to compute the value of n by 2, where n is nothing but the summation of all the frequencies. Summation of all the frequencies, or you can say in the other terms that when you make the column of cumulative frequencies, then the last term of the cumulative frequency, that will be the n, capital N. So basically that also tells us about the summation of a frequency. So you have to find out the value of n by 2, and as you already know that when we make less than or more than type of ogive, we put the variable terms on the x-axis and the cumulative frequency on the y-axis. So in that graph, n by 2 is the cumulative, the total frequency, sum of total frequency by 2. That means we have to mark a point on the y-axis. N by 2 will give us a value, so we have to mark that value on y-axis. That is what it is trying to say. Mark the corresponding point on a y-axis. This will be your second step. Now move to the third step. Draw a line parallel to x-axis. As you find out the value of n by 2, so you have to mark that n by 2 value on the y-axis. Corresponding to that n by 2 value, you have to draw a parallel line which will be parallel to x-axis. So you have to draw a line parallel to x-axis. This line will cut the either less than ogive or more than ogive. You can draw any one of them. ठीक है, less than ogive or more than ogive, it will cut at some point. So you have to mention that point. Here I mentioned that point as a point P. Now you have to draw a perpendicular line. Now you have to draw a perpendicular line, draw perpendicular PM from P on the x-axis, where P is on the curve and the capital M will be on the x-axis.
that capital M will tell us about the median. As you know that the median will belongs to the variable terms. Median cannot be from cumulative frequency, as we have plotted the cumulative frequency on y-axis and the variable on x-axis, then it is obvious that the median will be on the x-axis. So for that we need to draw a line perpendicular to PM. That means I can say that you have to draw a line which is perpendicular to x-axis. In other terms I can say like this: you have to draw a line perpendicular to x-axis. This perpendicular meets the x-axis at a particular point. That particular point will be the median of your question or of your class. This is the first type in which you can find out the median. Now move to the second class, in which it states that the first statement says that this time you have to draw both the ogives, less than ogive as well as the more than ogive. In this step we have clearly stated that you have to draw either less than or a more than ogive, but here you have to draw both the ogives. Then mark the point of intersection of two curves. Then two curves will intersect at some point. Let's say that point is P. Okay? Now move to the third step I mentioned same. That means you have to draw a perpendicular PM from P on the x-axis. The x-coordinate of point PM gives the median. This is the way you can either choose this algorithm or this algorithm. Both will be correct, and by using these two algorithms you can easily find out the median. Okay? Now I have right here one question, so we will discuss this question. Draw the two types of cumulative frequency polygons and determine the median. So as I mentioned, height 100 to 200 and frequency regarding those I have mentioned already here. So what we will do, we will make the table first, then we will draw the graph, then we will find out the median. Okay, so first height will be of variable, so either you can say as variable or you can simply say that it is height. This column will be regarding height and the next column will be regarding frequency. So 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. This will be your table. Okay. Now frequencies are given as 12, 14, 8, 6 and 10. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. एल्गोरिथम्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बस. ये आ गया आपका. द नेक्स्ट स्टेप विल बी इधर यू कैन राइट आपको किस टाइप का बनाना है. जैसे फर्स्ट वाला अपन बना रहे हैं लेस देन या मोर देन. ठीक है, तो लेस देन टाइप में क्या रहेगा आपका? लेस देन. तो आपको पता है लेस देन में क्या लिखते हैं अपन? लेस देन 120. ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 120. जो अपर लिमिट है वो अपन यहां मेंशन करते हैं 160, 180 एंड 200. ये रहता है. अगर आपको मोर देन बनाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. मोर देन लिखना है तो आप लोअर लिमिट कंसीडर करते हो, तो 100, फिर 120, 140, 160 एंड 180. इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. अब आपको क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है. अब उसके लिए मैं आपको दो कॉलम बना रहा हूं. ठीक है ना. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे मैं लिख देता हूं. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए? लेस देन के लिए. ठीक है ना. ये लेस देन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा यहां पे, और यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा मैं मोर देन ओगिव के लिए. ठीक है ना. लेस देन वाले के लिए और मोर देन वाले के लिए ये कॉलम बनाऊंगा. एक ही जगह कॉलम बन जाएगा, फिर ग्राफ बनाएगी, फिर मीडियन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना, ताकि बार बार अपने को वही चीज ना लिखना पड़े. याद रखना, लेस देन और मोर देन के लिए अलग अलग क्यों लिखा मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? बिकॉज दोनों के लिए अलग अलग मेथड रहता है ना. फर्स्ट के लिए देखो क्या रहता है, लेस देन के लिए क्या रहता है, अपन ये फ्रीक्वेंसी उनको ऐड करते रहते हैं. जैसे पहला आपका क्या आएगा? 12 आएगा, तो सिंपली
12 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 14 विल बिकम 26। फिर क्या रहता है, इन तीनों को ऐड करते हैं अपन, तो कितना बनेगा 26 प्लस 8 34। ठीक है ना, ऐसे बताया था। फिर क्या करते हैं, वो ऑन 4 को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 34 प्लस 6 विल बिकम 40 और प्लस 10 50। या तो आप ऐसे याद रख लो, या फिर पहला क्या करो, पहला लिख दिया, ये लिख दिया। फिर क्या करो, इसको डायगोनली ऐड करते हैं, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40 और 40 प्लस 10 50। ठीक है, ये अपना रहता है लेस देन टाइप के लिए। मोर देन टाइप के लिए क्या रहता है कि अपन स्टार्ट करते हैं किससे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, मतलब जो आपका एडिशन है उससे स्टार्ट करते हैं हम। टोटल एडिशन 50 है, तो यहाँ पे मेरा जो पहला रहेगा वो 50 रहेगा। अब क्या करता हूं, उस 50 में से ये 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन इट विल बिकम 38। 38 से ये 14 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन इट विल बिकम 24। 24 से ये 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन इट विल बिकम 16। 16 से ये 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन इट विल बिकम 10। ठीक है, ये मेरा हो गया लेस देन और मोर देन टाइप, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना लिया है। इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी रहेगी। ठीक है, तो आपको लिंक किस किस से करना है, इसका और इसका लिंक होगा और इसका और इसका लिंक होगा। अब ग्राफ बनाते हैं, तो लेट से ये आपका ग्राफ रहेगा, इधर थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन वेरिएबल पुट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल कौन से वेरिएबल, लेस देन टाइप का बना रहे हो तो ये आएंगे 120 140 160 180 और 200। तो लेट से ये आपका 120 है, यहाँ पे ये आपका 140 है, ये आपका 160 है, ये 180 है और ये आपका 200 है। याद रखना मैं यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहा हूं, 100 को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। ठीक है ना, 100 को क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। या तो आप 100 को इधर मान लो, ठीक है। अगर 100 को आप यहां मानोगे तो उससे पहले की जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो सारी की सारी क्या है, जीरो। अगर नहीं मेंशन आपके पास, मतलब 100 to 120 मेंशन आपके पास, 100 से पहले नहीं मेंशन है, दैट मींस उसके रिगार्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज ए जीरो ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, ये 100 ही मान लिया। ठीक है, ताकि अपने को अननेसेसरी कंफ्यूजन ही ना रहे। देखो, हालांकि ये मैटर नहीं करेगा, आपको मैटर करेगा सिर्फ ये वाले डाटा जो आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे क्या क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी। अब ये अपन डिपेंड करते हैं, देखो कहां से कहां तक जा रहे हैं अपन, 12 से लेके 50 तक, और यहाँ पे 10 भी है ना। तो आप चाहो तो या तो इनको 5 के टर्म में ब्रेक कर दो, तो 5 से लेके 50 तक आप लिख दो। तो लेट्स से 5 से स्टार्ट कर देते हैं इनको। तो ये आपका 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड दिस इज 50। ठीक है, तो सिंपली अभी आपको जल्दी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा। अब देखो ड्रॉ करना आपको, कॉलम कैसे उठाते हैं अपन, एक और कॉलम बनता है आपका, हालांकि वो नहीं बनाने वाला मैं। क्या रहता है कि x वेरिएबल और y वेरिएबल साथ में, दैट मींस x कैसे लेना आपको, x आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल 120 रहा, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसके रिगार्डिंग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12। तो 120 और 12 को आपको क्या करना है, मैच करवाना है। तो 120 और 12 कहां पे मिलेंगे, यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, ये आपका 120 और 12 होगा। ठीक है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी 140 26। तो 140 26 यहां कहीं मिलेंगे, तो यहां लिख देता हूं 140 and 26। नेक्स्ट विल बी 160 आपका और 34। 160 and 34 आपका यहां कहीं मिलेगा। फिर 180 आपको 40 मिलेगा, 180 and 40 लेट्स से यहां मिल गया। एंड 250 तो लेट्स से वो आपको यहां मिला। ये आपका किस टाइप का ग्राफ बना दिया आपने, लेस देन ऑब्जेक्ट टाइप का। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, सिंपली बस आपको लाइन बना देनी है इसे।
तो ये ज्वाइन हुआ आपका इससे, ये ज्वाइन हुआ आपका इससे, ये ज्वाइन हो गया इससे, और ये वाला इससे। इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हैं, तो इनको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो पीछे क्या रहेगा आपका, पीछे तो जो भी इंफॉर्मेशन वो जीरो है। दैट मींस ये आपका एक ग्राफ बन गया। ये किस टाइप का है, लेस देन टाइप का है। ये आपका है लेस देन हो गया। अब अपन बनाते हैं मोर देन होगी। तो मोर देन में देखो आपका वही रहेगा, बट 120 के कोरस्पॉन्डिंग या आपका मोर देन 100 है, तो 100 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये 100 रहा और ये आपका 50 रहा, ये पॉइंट आएगा 150। फिर 120 38, तो 120 ये रहा, 38 आपका यहां कहीं आएगा, तो ये मेंशन कर दो, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 140 और आपका 24 रहेगा, तो लेट्स से यहां कहीं आ रहा है। देन 160 एंड 16 रहेगा, तो 16 लेट्स से आपका यहां कहीं आ रहा है, तो 160 एंड 16। देन आपका 180 और 10 रहेगा, तो 180 एंड 10 आपका यहां कहीं रहेगा, लेट्स से ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो अब इसको जब आप मीट करवाओगे ऐसे, ये आपके पॉइंट्स हो गया ना। अब देखो ग्राफ मैंने दोनों बना दिए हैं, दोनों तरीके से अपन इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले में क्या करना है, किसी एक ग्राफ को आप ले लीजिए, इधर लेस देन और मोर देन वाला, इट्स अप टू यू। तो ये मोर देन होगी, ठीक है। तो लेट्स से आपने लेस देन वाला ले लिया पहले केस में। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, n/2। n/2 क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ। टोटल कितना फ्रीक्वेंसी है, 50। 50 का हाफ होगा 25, तो 25 को आप मार्क करो, दिस इज योर पॉइंट 25। ये आपका n/2 है, ठीक है। इसको मार्क करने के बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेट्स से आप ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये इसको इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जहां पे ये मीट हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। अब ये आप जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि P पॉइंट है कौन सा, ठीक है। P का y कोऑर्डिनेट 25 है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसके लिए आपको क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, या आप ग्राफ से इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करो, तो लेट से आपका यहां कहीं आ रहा है वो पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज योर मीडियन, ये आपकी मीडियन है। मीडियन कितनी रहेगी, 140 से लेट से अप्रोक्सीमेटली 142 के आसपास कर देते हैं, ठीक है। 142 140, ठीक है। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं अपन, ठीक है। और उस पे भी रहेगा कि जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन किया है, ये ग्राफ पे भी मेरा बहुत डिपेंड रहेगा कि ये जो पॉइंट आ रहा है वो यहीं पे है या इसके आसपास कहीं और शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बट मेन पर्पस क्या है अपना, कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आपके साथ ग्राफ रहेगा तो आप एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाओगे कि उसकी मीडियन क्या आ रही है, ठीक है ना। तो उससे नहीं ज्यादा सोचना अपने को, तो प्रोसीजर उसको सीखिए बस। तो लेट्स सी ये आपका मीडियन आ गया 142, किससे आया, ये फर्स्ट मेथड से आया। नाउ अब अपन सेकंड मेथड से ड्रॉ करते हैं। क्या करना आपको, बोथ होगी ड्रॉ करने हैं, कर दिए मैंने। नाउ सेकंड मार्क पॉइंट, उस पॉइंट को मार्क करना है P जहां पे दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ कौन सा पॉइंट है वो रहा आपका ये। तो इस केस में आपका पॉइंट P ये है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, सेम वापस वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ये दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, बहुत क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। दैट मींस अपना क्या है, ग्राफ में कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, क्यों, स्केल से तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो जब आप ग्राफ मिलेगा ना आपको, तो आप उसको एग्जैक्टली बता पाओगे। तो इससे भी आपका मीडियन क्या आ रहा है, एकदम पास पास में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मीडियन फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। सिंपली एक गिवन है तो n/2 और n/2 से इस पॉइंट को मीट करवा दो, परपेंडिकुलर डाल दो, वो हो गया आपका पहला मेथड, ये मीडियन होगा। या फिर दोनों का जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, दैट विल बी योर
मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मीडियन फाइंड आउट करनी होती है जब आपका ओगिव है, ओगिव से आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका तरीका रहेगा। तो होपफुली ये आप समझे होंगे। इस तरीके से टेबल ड्रॉ करनी है और ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है और इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी इजी अप्रोच है, सिर्फ जो एल्गोरिथम है उसको ढंग से देखना आपको।